PAC nomenclature is over. Preparation of phenol from 4 different chemical reaction is over. And then after we were discussing the chemical properties. In chemical properties, acidic nature was over that day. We need to discuss the ES reaction. In ES reaction, its full form is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. Just concentrate on slide. I am not saying कि everyone will get 100% from here. 10%, 20%, 30% जितना आप ले सकते हो उतना आप यहाँ से गेन करो. So electrophilic substitution reaction. In electrophilic substitution reaction in previous chapter there were 4 chemical reaction: halogenation, nitration, sulfonation and Friedel-Crafts. Here only 2, nitration and halogenation, and this is very important because in organic property only in aromatic property only 2, nitration and halogenation. So as you know, before ES reaction, before ES reaction, electrophilic substitution reaction, we need to check the resonance. हमको क्या चेक करना पड़ता है? Resonance. And by resonance we will get the information that the group is ortho para directing or meta directing. So see the resonance. Resonance is here, that is resonating structure. In resonating structure, in resonating, you can zoom in your screen. ठीक है. In resonating structure, again remember the previous information, that atom which attach with benzene ring, if that will have the lone pair, then that will be EDG. जो एटम बेंजीन रिंग से अटैच होगा अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो EDG होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. So in the previous halogen, Cl was having or X was having, here oxygen. So see, oxygen means OH group. OH group is EDG group. If anyone will ask the single bond OH group or alcoholic group or hydroxy group is EDG or EWG, then it is EDG. Why it is EDG? Because its oxygen is going to attach with benzene ring and that oxygen is having lone pair. So that atom which attach with benzene ring, if that is having lone pair, then that will be EDG. So see what is happen. One lone pair is given by oxygen to, okay, this oxygen carbon, that is double bond formation. So this double bond will be broken down. ये double bond break हो रहा है. So see, as like the previous one, this lone pair is going to be converted into double bond. ये लोन पेयर जो ऑक्सीजन के पास था, दैट लोन पेयर इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड. ठीक है. सी, फर्स्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 लोन पेयर. सेकेंड वाले में केवल 1 लोन पेयर है बिकॉज 1 लोन पेयर इज पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. सो लोन पेयर इज कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था दैट इज कन्वर्ट इनटू लोन पेयर. ये इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया? lone pair में. So oxygen has given the electron, oxygen get the positive charge and this carbon has taken the electron, that is double bonded electron, that's why it get the negative. Now in the next, what is happen? Cyclization. So this, the one pair of electron which comes from this bond, that will be comes and form the bond here between second and third carbon, and the bond between third and fourth carbon convert into electron. एक जगह पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और दूसरे जगह पे उसके आगे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में. दैट विल बी हैपन इन resonance, that is movement of pi electron. So this 2 electron will form the bond and these bonded 2 electron will convert into lone pair. So now the negative charge comes here because this carbon has taken the electron. Now this electron will be
move to form the bond, and the next bonded electron will move to form the electron. So bond electron bond में convert हो रहा है and bond electron में. So now the negative charge is here, and at last whatever the electron given by the oxygen, that electron is again moved back to oxygen, and this electron comes back, so it forms the final structure, this. So resonance always show 5 structure as I informed you. See the pattern, resonance का pattern समझिए. First of all, what is happening? See, एक ही pattern सब में लगता है. This oxygen will give the electron, so double bond will form here, and this bond will convert into electron. So next what will be happen? एक electron एक bond, बस यही करना है. See, here double bond will be formed, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, एंड हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स कम, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल हैव द नेगेटिव, एंड नेक्स्ट एट सिमिलर प्लेस. Now next what will be happen? This bonded electron means lone pair electron will form the bond, and this bonded electron form the lone pair. So what will be happen in the next? The double bond O will be there, and here will be double bond form, and electron will come at the bottom one. Sorry, electron will come at bottom one. So in this way the electron, this is the resonance effect, is the movement of pi electron. Class 11th में सारा बताया गया होगा pi electron. That's why you can see only the double bond is moving, not the single bond is moving. Single bond is sigma, double bond one is pi 1. So by this you can see again the previous information, it is ES reaction. So what will be the attacking reagent? Electrophile. Electrophile means positive charge. Attacking reagent कौन होगा? Positive charge. So where it will be attacked? So by second, third and fourth. What you will write? See, you will write the heading ES reaction. आप heading डालेंगे ES reaction, electrophilic substitution reaction. Below this you will write resonance in phenol. Then you will write this 5, give the number 1 2 3 4 5. Then after you will write by second, third and fourth structure. सेकेंड थर्ड फोर्थ ही देखना है, फर्स्ट और लास्ट में कहीं चार्ज नहीं है. बाय सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर वी कैन सी ड्यू टू रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हो रहा है? ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे. सो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल बी अटैक. इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव. पॉजिटिव कहाँ आएगा? जहाँ पे निगेटिव होगा, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. So upcoming electrophile will be attack at ortho and para position. So phenol will form ortho para product. Phenol क्या बनाएगा? Ortho para product. So phenol is ortho para directing. Phenol or single bond OH group is ortho para directing because it is EDG. तो हमको ये पता चल गया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, रिजोनेंस खत्म. एंड दिस इज क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज का क्वेश्चन इफ यू विल रीड तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13-14 समथिंग कि एक्सप्लेन 2 क्वेश्चंस आर देयर. फर्स्ट नंबर, एक्सप्लेन व्हाई फिनॉल फॉर्म ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट. पहले ये बताइए कि फिनॉल ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट क्यों बनाता है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज देयर कि व्हाई the electrophile attack at ortho and para position in phenol. इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल पे ऑर्थो पैरा पे ही क्यों अटैक करता है? तो आप बताएंगे, रिजोनेंस बनाएंगे और कहेंगे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर पहले, इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करता है, देन यू से कि रिजोनेंस बनाएंगे, कहेंगे बाय सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर वी कैन सी इन फिनॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो पैरा पोजिशन और निगेटिव चार्ज कम्स एट ऑर्थो पैरा पोजीशन. निगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग एट ऑर्थो पैरा पोजीशन.
ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा कि व्हाई इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग एट आर्थोपैरा. नेक्स्ट, दैट इज व्हाई फिनॉल फॉर्म arthopara product. Then again you will draw the resonance and then you will write, because by the resonance second, third and fourth structure we can see electron density is increases at arthopara position. So upcoming electrophile attack at arthopara and form the arthopara product. ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे ही आर्थोपैरा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा रिजोनेंस दिखाना है. नाउ we need to discuss two, nitration and halogenation. Now remember this, in phenol nitration is in two case and halogenation is also in two case. नाइट्रेशन दो केस में है और हेलोजिनेशन भी दो केस में है, इसलिए यहाँ पे दो ही रिएक्शन पढ़ना है. एक है विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड दूसरा है विथ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. रिमेंबर दिस, वन है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. अभी तक आप केवल एक केस लेते थे, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4. बट फिनॉल को देखा गया है कि फिनॉल इज रिएक्टिंग इन टू वे, डाइल्यूट से भी रिएक्ट करता है और कॉन्सनट्रेटेड से भी. सो रिमेंबर, दो अलग अलग से दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं. सी, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 then it form two product, orthonitrophenol and paranitrophenol. Then it form two product, orthonitrophenol and paranitrophenol. But when phenol is react with concentrated HNO3, यही चीज very important है, concentrated HNO3 is there और dilute HNO3 is there. Remember this, इस चीज को आपको ध्यान देना है कि when dilute will be there, it form the two product, mixture of two product, orthonitrophenol and paranitrophenol. But if concentrated HNO3 is there, then it form only one product, that is 2,4,6. 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 तीन पोजीशन पे नाइट्रो आके अटैच होगा, आर्थो और पैरा दोनों पे. सो इट फॉर्म 2,4,6 trinitrophenol. Sometimes it is written 2,4,6 TNP. Trinitrophenol को शॉर्ट फॉर्म में लिखता है TNP and its common name is picric acid. पिक्रिक एसिड. ठीक है. सो फेनॉल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, देन इट फॉर्म, ठीक है, देन इट फॉर्म orthonitrophenol and paranitrophenol, two product. But if concentrated HNO3, then it form only one product, that is picric acid or 2,4,6 TNP. Remember this. और यही क्वेश्चन पूछता है डिफ्रेंशिएट करके कि when react with dilute HNO3, then what it form, or react with concentrated HNO3, then what it form. Remember this, concentrated के साथ picric acid है 2,4,6 TNP and dilute के साथ two product है. Now second question, how we will separate the ortho and paranitrophenol. This is question in your NCERT कि ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल को कैसे सेपरेट करते हैं. देन सी, ortho and paranitrophenol is separated by steam distillation. This name you know from class 11th. Distillation में steam distillation, low pressure distillation, fractional distillation and simple distillation, four were there. So which method is used to separate ortho and para isomer of nitrophenol or ortho and paranitrophenol? Then that is the name of steam distillation. Now next question, why steam distillation is used to separate the ortho and paranitrophenol from their mixture? Because orthonitrophenol is steam volatile and paranitrophenol is less steam volatile.
और यू कैन से पैरा नाइट्रोफिनॉल इज नॉट स्टीम वोलाटाइल। ठीक है, स्टीम वोलाटाइल का मतलब क्लास 11 में आपको बताया गया होगा कि वी विल पास द स्टीम इन द मिक्सचर, सो वन कंपोनेंट विल बी स्टीम वोलाटाइल, मतलब स्टीम से रिएक्ट करके वेपर में कन्वर्ट होता है, सो दैट कंपोनेंट convert into vapor and separate in another container by condensation, and that which is not steam volatile that is remain in previous container. So orthonitrophenol और पैरानाइट्रोफिनॉल में orthonitrophenol is steam volatile and पैरानाइट्रोफिनॉल is non steam volatile, means steam volatile नहीं होता है. That's why we are using the steam distillation. Now next, why orthonitrophenol is steam volatile and para is not steam volatile? Because orthonitrophenol is having intramolecular hydrogen bond and paranitrophenol is having intermolecular hydrogen bond. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर, एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल के बीच में. ठीक है, सो रिमेंबर 3-4 क्वेश्चंस आर देयर. नाइट्रेशन फर्स्ट, व्हेन आप लिखेंगे नाइट्रेशन फिनॉल, सो नाइट्रेशन इन फॉलोइंग 2 केसेस. फर्स्ट नंबर with dilute nitric acid. When phenol react with dilute nitric acid, then it form a mixture of ortho and para nitrophenol. Then after you will write this equation. उसके बाद आप ये equation लिखेंगे. Now next note. After that you will write note. In note you will write कि ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर. नोट में फर्स्ट पॉइंट, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन. फर्स्ट. सेकेंड नंबर इन नोट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम नॉन वोलाटाइल. थर्ड पॉइंट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज हैविंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स व्हाई स्टीम वोलाटाइल, and paranitrophenol is having intermolecular hydrogen bond, that's why it is steam non-volatile. And then after you will write this diagram, and then next second with concentrated HNO3 you will write when phenol is react with concentrated HNO3 undergo nitration with concentrated HNO3, then it form a single product that is picric acid or 2,4,6 trinitrophenol, because more HNO3 molecule is present in concentrated compound. मतलब नॉर्मल नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड के साथ होता है, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड के साथ फिनॉल का किया गया तो ये केवल एक प्रोडक्ट दिया. देन साइंटिस्ट वर कंफ्यूज्ड कि अब ये एक प्रोडक्ट क्यों दे रहा है, ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, 2 देना चाहिए. देन दे हैव टेकन द डाइल्यूटेड पार्ट, तब उनको 2 प्रोडक्ट मिला. तो इट मीन्स फिनॉल इज शोइंग द नाइट्रेशन इन 2 वे, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, एंड अदर्स आर शोइंग ओनली विथ कॉन्सेंट्रेटेड नॉट विथ डाइल्यूट. बाकी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करते, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करते. तो बाकी सारे एरोमेटिक कंपाउंड में कॉन्सेंट्रेटेड है, केवल फिनॉल ही एक ऐसा है जहाँ पे डाइल्यूट के साथ आया है. नाउ रिमेंबर दिस वर्ड पिक्रिक एसिड, इसका IUPAC नेम लिखने को भी आता है. जैसे ये सब स्पेशल नाम नहीं मिले, नोट डाउन कर लीजिए. पिक्रिक एसिड, व्हाट इज द राइट IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड. सो नाइट्रेशन इज दिस इन 2 वे. नाउ हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन में आई इन्फॉर्म्ड यू कि प्रीवियस चैप्टर में वी हैड डिस्कस द क्लोरीनेशन. हियर वी नीड टू डिस्कस द ब्रोमिनेशन. हमको डिस्कस करना है ब्रोमिनेशन. मीन्स हमको ब्रोमीन से केवल रिएक्ट कराना है, किसी और से नहीं. इन योर सिलेबस ओनली ब्रोमीन इज देयर. एज लाइक नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन मीन्स फिनॉल इज ऑल्सो शो ब्रोमिनेशन इन 2 वे. फिनॉल भी ब्रोमिनेशन 2 तरीके से करता है. सी फर्स्ट वन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन CS2, मतलब
ब्रोमीन का जो सॉल्यूशन बनाया गया है दैट इज बाय मिक्सिंग इट इन कार्बन डाइसल्फाइड, रिमेंबर द फॉर्मूला एंड नेम बोथ, किसी तरीके से आ सकता है। पानी में ब्रोमीन नहीं मिलाया गया है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इज नॉट देयर, ठीक है। ब्रोमीन इज डिजॉल्व इन CS2 एंड दैट सॉल्यूशन इज यूज फॉर ब्रोमिनेशन, एक कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन, ब्रोमीन वाटर means bromine is dissolved in H2O, means aqueous bromine. So there are two, one is with the bromine solution in CS2 and second is with the aqueous solution of bromine. If phenol is going to be react with bromine in CS2, मीन्स ब्रोमीन को CS2 में डिजोल्व किया गया और फिर फेनॉल से रिएक्शन कराया गया, देन इट गिव द टू प्रोडक्ट, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। बट सेकेंड, व्हेन फेनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, ये लिखा रहेगा ब्रोमीन वाटर या यहाँ लिखा रहेगा Br2H2O, रिमेंबर दिस, ब्रोमीन वाटर, एक्वस ब्रोमीन में भी यहाँ पे एक्वस लिखा रहेगा और Br2H2O, it means bromine water, then it form just one product, that is 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, which is in the form of white PPT। देखिए जहाँ ये इंफॉर्मेशन दे इसको भी नोट डाउन करिए, अंडरलाइन करिए और हाईलाइट करिए। मे बी द क्वेश्चन विल बी देयर कि व्हेन फिनॉल treated with bromine water then it give the white PPT, what is that white PPT, ऐसे पूछे कि वो white PPT क्या होता है। और when phenol treated with bromine water then it give, चार ऑप्शन है, white PPT, red PPT, yellow PPT, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। so when phenol react with bromine water then it give the one product, that is 2,4,6 TBP, 2,4,6 TBP ट्राइब्रोमोफिनॉल, उसमें था 2,4,6 TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यहाँ TBP ट्राइब्रोमोफिनॉल, दैट TNP इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, इसको पिक्रिक एसिड नहीं कहा जाता है, ठीक है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है, and it is in the form of white PPT. So now how you will write halogenation, you will write the heading halogenation, in this bracket you will write the bromination, then you will write phenol react with bromine in following two different way, following two different way. First number, when phenol react with bromine in CS2, then it form a mixture of orthobromophenol and parabromophenols, out of which para is major product as usual, and you will write this equation. Then after second, when phenol treated with bromine water, then it form 2,4,6 TBP in the form of white PPT, ठीक है, and then you will write this equation. तो phenol में नाइट्रेशन इज इन टू वे एंड हैलोजिनेशन इज इन टू वे, फेनॉल में ही केवल ऐसा है, किसी और में नहीं है। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स ES रिएक्शन इज ओवर। नेक्स्ट इज कोलबेज रिएक्शन, नेम रिएक्शन, Kolbez and Riemer-Tiemann. Another important one is Riemer-Tiemann. Now I am going to discuss the Kolbez reaction. ये तो नेम रिएक्शन है, बस आपको स्टेटमेंट ही लिखना है। सो कोलबेज रिएक्शन, सी कोलबेज रिएक्शन, व्हाट इज कोलबेज रिएक्शन, यहाँ से बतलाते हैं। देखिए, इट इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड जो खुजली वाला पाउडर वगैरह आता है उसमें ये यूज होता है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इज कॉमन नेम एंड IUPAC नेम इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सी देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप, यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक OH एक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो मेजर वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, नाउ OH becomes the
ठीक है, लोअर फंक्शनल ग्रुप। सो पहले नंबरिंग कार्बोक्सिलिक को देंगे, दैट्स व्हाई इट इज रिटन 2 हाइड्रोक्सी, 2 hydroxy, and benzoic acid benzene contains COOH. So remember, first of all, the common name on IUPAC name salicylic acid, ये दे देगा, कहेगा write its IUPAC name, then 2 hydroxy benzoic acid, structure is benzene contain OH and COOH. now what is Kolbe's reaction, ये याद रखिएगा, Kolbe's reaction का प्रोडक्ट क्या है, salicylic acid. So when phenol react with carbon dioxide and NaOH, carbon dioxide and NaOH, then it form salicylic acid. Then it form salicylic acid. This reaction is called Kolbe's reaction. So Kolbe's reaction को ऐसे याद रखिए कि phenol is going to be convert into salicylic acid. Kolbe's में इतना याद रखिए, phenol to salicylic acid, phenol to salicylic acid. Kolbe's reaction क्या होता है, नेम रिएक्शन में then when phenol react with carbon dioxide and NaOH, then it forms salicylic acid. स्टेटमेंट, लेकिन अब ये होता कैसे है, सो इट कंप्लीट्स इन ओवरऑल 3 स्टेप, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेप, फिनॉल विल बी रिएक्ट विथ NaOH, सो फिनॉल का NaOH मीन्स एसिडिक नेचर, सो व्हाट विल बी हैपन, Na will displace the H plus, so form sodium phenoxide, ये नाम आपको मिल चुका है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में लगभग तीनों मेथड में, फ्रॉम हेलोएरेन, फ्रॉम BDC, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सो इट फॉर्म सोडियम फेनॉक्साइड, बेंजीन पे O हो गया, फेनॉक्साइड एंड सोडियम. दिस सोडियम फेनॉक्साइड नाउ रिएक्ट विथ CO2. अब ये सोडियम फेनॉक्साइड CO2 से रिएक्ट करता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनाता है, दैट इज C. वो इंटरमीडिएट क्या बनता है, ONA, और जैसा आपको मालूम है फिनॉल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आर्थो पे आएगा COO, CO2 यहाँ आया, CO2 मतलब COO, ठीक है. सो CO2 यहाँ आएगा और यहाँ का H भी इसी में अटैच हो जाएगा, तो बनेगा COOH, मीन्स प्रोडक्ट बनेगा ONaCOOH. दिस इज ICC, यहाँ दिया नहीं है. और फिर इसके बाद एसिडिफिकेशन होगा, जो आप जानते हैं, H प्लस विल बी रिप्लेस द Na टू फॉर्म OH, H प्लस Na को रिप्लेस करके OH बना देगा. सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट. सो बीच का ये नहीं दिया हुआ है जो इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है, बट यहाँ लिखा है, देखिए, फर्स्ट फेनॉक्साइड इज generated by treating phenol with sodium hydroxide, which is more reactive than phenol. फेनॉक्साइड आयन क्यों बन रहा है, क्योंकि फेनॉक्साइड आयन, ठीक है, फेनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फेनॉल, फेनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव है. नाउ अब ये फेनॉक्साइड आयन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, लिखा है. सो फर्स्ट फेनॉक्साइड बना, और फेनॉक्साइड आयन is, wait a minute, phenoxide ion is going to be react with CO2. ये CO2 से रिएक्ट किया और वो इंटरमीडिएट बनाया, कहाँ पे आएगा ये, आर्थो पोजीशन पे, एंड देन एसिडिफिकेशन से Na की जगह H आ जाएगा, सो इट फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड. आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज फॉर्म एज मेन प्रोडक्ट. सो आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए. कोल्बेज रिएक्शन विल बी द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी. दिस इज थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट वाज एसिडिक नेचर, सेकंड वाज ES, थर्ड इज कोल्बेज रिएक्शन. सो व्हेन phenol react with NaOH and CO2, then it form salicylic acid. In this process
फिनॉल सर फर्स्ट रिएक्ट विथ, हेलो, यस सर सर पैरा पोजीशन पे भी बनेगा? आर्थो एंड पैरा बोथ विल फॉर्म बट पैरा विल बी लेस हियर, यहाँ पैरा लेस होगा क्योंकि OH से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ OH से रिएक्ट नहीं कर रहा है। जो आपने ES रिएक्शन देखा, ठीक है, यहाँ OH से ही रिएक्ट कर रहा था। सो आर्थो पैरा में पैरा मेजर हो रहा था, बट हियर इट इज नॉट रिएक्टिंग इन OH, इट इज रिएक्टिंग विथ ONA। सो ONA के साथ जो ऑर्थो वाला होता है दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट दिया, बनेगा आर्थो पैरा दोनों, बट इन कोलबेज रिएक्शन एंड रीमर टीमैन रिएक्शन दोनों में ONA से ES रिएक्शन होता है, OH से ES रिएक्शन नहीं होता है। इसके पहले जो EH रिएक्शन पड़े थे ये OH से ही हो रहा है, सो पैरा मेजर था। लेकिन यहाँ पे ONA, सी हियर, it undergo ES reaction means phenoxide undergo ES reaction। so phenoxide में ये ES रिएक्शन कर रहा है, इसलिए इसमें ऑर्थो मेजर होता है, इसलिए यहाँ ऑर्थो प्रोडक्ट केवल दिख रहा है, बट ऑर्थो एंड पैरा बोथ विल बी फॉर्म। इफ यू विल सी इन साइड बुक, अगर साइड बुक वगैरह में देखेंगे तो आपका लिखा होगा ऑर्थो एंड पैरा बोथ विल बी फॉर्म बट मेजर विल बी ऑर्थो, साइड बुक में दोनों लिखा होगा। सो इफ यू वांट यू कैन राइट हियर ऑर्थो एंड पैरा मीन्स एक COOH यहाँ से हटा करके पैरा पे लगा दीजिए, टू प्रोडक्ट विल बी देयर, दिस इज ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, दैट विल बी पैरा सैलिसिलिक एसिड, एंड देन आफ्टर इसको लिखिए मेजर, उसको लिखिए माइनर। कंफ्यूजन ना हो क्योंकि आपके पूरे बुक में पैरा मेजर होता है, यही तो रिएक्शन है जहां ऑर्थो मेजर होता है। सो कंफ्यूजन ना हो, दैट्स वाई केवल ऑर्थो ही आपके NCERT में दिया है, पैरा वाला हटाए दिया है, बट बोथ विल बी फॉर्म, बनेगा दोनों, जहां पे भी ऑर्थो बनता है वहां पैरा जरूर बनेगा। इज दैट क्लियर? यस सर, ओके। यस सर क्लियर। मेटा के साथ नहीं बनता है, लेकिन आपका कंफ्यूजन ना हो क्योंकि हम हर जगह कहें पैरा मेजर होता है लेकिन यहाँ पे ऑर्थो मेजर होता है। सो इट फॉर्म सैलिसिलिक एसिड, और ये रिएक्शन लिख देंगे कोलबेज रिएक्शन। नाउ one last, I will take 5 more minutes. Reimer Tiemann reaction, some of them are pronounced as Reimer Tiemann reaction, कुछ लोग Reimer Tiemann कहते हैं, कुछ लोग Reimer Tiemann कहते हैं, ठीक है। It is also same as like Kolbe, just one difference is there। वहाँ पे क्या लिए थे CO2 और यहाँ पे क्या लेंगे क्लोरोफॉर्म, ठीक है। कोलबेज में CO2 है, कोलबेज में CO2 है, इसलिए यहाँ पे COOH आ रहा था, एंड रीमर टीमेन में क्लोरोफॉर्म इज देयर, सो यहाँ पे आएगा CHO एल्डिहाइड। सो कोलबेज रिएक्शन इज conversion of phenol into salicylic acid, and Reimer Tiemann में phenol is going to be convert in salicylaldehyde, सैलिसल्डिहाइड इसको कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। सी द डिफरेंस, सैलिसिलिक एसिड क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड था, सैलिसल्डिहाइड क्योंकि अल्डिहाइड है, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन नेम, इसका नाम बताया गया था 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड के जगह पे अल्डिहाइड आ जाएगा तो बेंजल डिहाइड। सो इट्स नेम विल बी, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दैट इज सैलिसल्डिहाइड। सो रीमर टीमेन में सैलिसल्डिहाइड बनता है। प्रोसेस सेम, प्रोसेस इसमें भी वही है। सी फर्स्ट NaOH will react with phenol to form ONA, and then after that ONA will react with chloroform, then form an intermediate, that is CHCl2, CHCl2, ठीक है। बीच का आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट राइट दिस वन, ठीक है। फिर इसके बाद एसिडिक वाटर से रिएक्ट करेंगे, देन
the hydrogen comes here, oxygen comes to replace the Cl to form OH and CHO, aldehyde. See in equation. On treating phenol with chloroform in presence of sodium hydroxide, it form the CHO group. इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ है. यहाँ लिखा हुआ है इंटरमीडिएट जो बनता है वो आपको ये दिख रहा है, ठीक है. इंटरमीडिएट जो बनता है वो दिख रहा है, यही सॉरी ये नहीं, ये इंटरमीडिएट जो बनता है ये दिख रहा है. दिस इज रिएक्टिंग with acidic water, undergo acidification, then form salicyldehyde. So what you will write? When phenol react with, लिखने में आपको डायरेक्ट लिखना है इसमें, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, 2 लाइन बस लिखना होता है. when phenol react with chloroform and NaOH, then it form an intermediate complex which on treatment with acidic water give सैलिसल्डिहाइड और 2-hydroxybenzylaldehyde. ये बीच वाला लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है. एंड दिस क्वेश्चन वाज इन दिस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन 2 times. सेम पेपर में 2 टाइम है, सेम पेपर में 2 टाइम था, मीन्स 2 क्वेश्चन 2 नंबर का. एक एमसीक्यू में था, एमसीक्यू में ये लेफ्ट साइड वाला दिया था, और राइट साइड वाला पूछा था कि व्हाट विल बी इट्स प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा. एंड सेकेंड क्वेश्चन था नेम रिएक्शन में, एक्सप्लेन द रीमर-टीमन रिएक्शन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में भी ये 2 बार है, एक बार इसी तरह नेम रिएक्शन है और एक बार प्रोडक्ट है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन NaOH. Chloroform in NaOH, then salicylaldehyde, and carbon dioxide in NaOH, then salicylic acid. So this is our chemical property of phenol. So 4 chemical over. So tomorrow phenol will be over and we will start the ether maybe. रिएक्शन विथ जिंक डस्ट बहुत छोटा सा है एंड ऑक्सीडेशन छोटा सा, एक रिएक्शन है. सो टुमारो दिस विल बी ओवर विद इन 10 minutes एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द ईथर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट. सो आई होप कि नेक्स्ट वेडनेसडे तक चैप्टर विल बी ओवर.